एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਸਦਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਦਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜੂਨ 1932 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰੁਕਮਣ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਹੰਬੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਂਚ ਬਾਜਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ 1955 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਮਾਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਨ 1957 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਤੌਰ CMO ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਦਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ DGM ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੌਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ MD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤੇ ਬਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਦਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
प्यार पावेगा। संसार के अंदर हरेक चीज जिहड़ी है वो चलाएमान है, नाशवान है। सतगुरु महाराज ने सारे की गिनती कर दी। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ वैष्णहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप आकार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप हुए खार, कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया प्रकार। सब कुछ नाशवान है। रिश्तेदारियां वो भी नाशवान है। पहनने वाले गहने वो भी नाशवान है। उच्चियां रुतबियां के उत्ते पहुंचने वाले वो भी नाशवान है। ये सतगुरु महाराज कहते हैं सब कूड़ है, फिर कीता की जावे। सतगुरु महाराज कहते हैं जिहड़ा नाशवान नहीं है, परमेश्वर नाशवान नहीं है। परमेश्वर के नाल प्यार पाया जाए, परमेश्वर की बंदगी जिहड़ी है वो की जाए, क्योंकि संसार दे विच सब चलाएमान है। जो आउंदा है उन्हें एक दिन संसार दे विच चले जाना। जिवें एक मुसाफिर किते जाण वास्ते तुरदा है ते रास्ते दे विच उहनूं रात पै जाती है। रात पैण दे नाल उसे पिंड दे विच रात कटदा सवेर हुंदिया अपनी मंजिल वल फिर तुर पैंदा है। फकीर एक इवें दा रब की बंदगी करन वाला ते मनुखता नूं रब दे नाल जोड़न वाला वो भी इवें जा रहा सी कि अचानक शाम पै गई ते मौसम खराब हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, सर्दी के दिन सन। ते वो फकीर एक घर वेख के उसका दरवाजा खटकाउंदा है। वो दरवाजा खोलण वास्ते एक घर का मालक चढ़ती जवानी का वो निकलता है। ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ है फकीर ने मैं अज रात कटनी है, अपने घर के किसी कोने दे विच मैनूं जगह मिल जाएगी। वो अगे घर का मालक कहण लगा भी बाबा ये सराह थोड़ी है, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जिथे रात कटेगा। जे रात कटनी है तो कोई धर्मशाला कोई सराह वेख। फकीर मुस्कुराया ते कहण लगा भी भलिया है ते ये सराही है ते ये धर्मशाला ये तेन भलेखा है। वो फकीर ते चला गया, ये गल कह के, पर वो घर का मालक हुण अपने बच्चों को आखदा भी दूरों देखो मेरा घर सराह की तरह लगता, धर्मशाला की तरह लगता। क्योंकि घर के धर्मशाला के फर्क रखते थे लोग। घर को बड़ी सजावट के नाल बनाउंदे ने कि धर्मशाला शक्तिशाली होया करदी है रहण वास्ते। अपने बच्चों को कहता दूरों जाके देखो मेरा दूरों दिसण सराह लगदा है घर। ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ नहीं पिता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ है। फकीर ਐਵੇਂ कह गया साडी भी बड़ी वधिया कोठी है। हुण रात गई ते रात गुजर गई, सवेर का वक्त होया ते वो घर का मालक सवेर की सैर करने वास्ते टहलण वास्ते बाहर निकलिया। देवदेव के नाल वो फकीर पिंड ने एक कोने दे विच उत्थे बैठा होया सी भट्ठी दे कोल। पुराने समय दे विच दारू भुनण दीयां भट्ठियां अक्सर होया करदियां सन। वो फकीर उस भट्ठी के कोल बैठा होया उस मनुख को मिल गया। हुण वो घर का मालक जिहड़ा जिहदे घर का दरवाजा खटकाया सी फकीर ने, हुण वो घर का मालक उस फकीर को टांच के नाल पुछदा, कहता फकीरा कितना च रात गुजरी तेरी। फकीर ने अग्यों क्या कहन लगा भी भलिया अद्धी को रात ते तेरी वर्गी गुजर गई, पर अद्धी को रात तेरी नालों वधिया गुजरी।
तेरा घर सराह की तरह है, धर्मशाला की तरह है। हुण ये दूसरी गल कह दी कि अद्धी तू रात तेरे वर्गी ते अद्धी तू रात तेरे नालों वधिया गुजरी, मेरे नालों वधिया किवें गुजर सकती है। आखण लगा मेरे घर दे विच ते सुख आराम की हरेक चीज पई है, हरेक सुख सहूलत है। तेनू आ भट्टी दे कोल किवें मेरे नालों वधिया रात गुजारने का समा मिल गया। फकीर कहण लगा सुन, जदों मैं तेरे घर तो वापस आया सी ना ते इस भट्टी की अग दे नाल सेक आउंदा सी, मैं दूर ढासना ला के बैठ गया, मैं सेक आउंदा रहा ते मेरी अख लग गई, मैं नींद की अवस्था में चला गया। पर जब अद्धी रात गुजरी ते गुजरन तो बाद भट्टी ठंडी हो गई, मैनूं ठंड लगन लग पई, मेरी जाग खुल गई। जाग खुली ते मैं रब की इबादत विच जुड़ गया। जेड़ी ते रात मेरी अद्धी सौ करके गुजारी वो ते तेरे बराबर गुजर गई। तू भी सुनता सी, मैं भी सुनता सी, पर जेड़ी अद्धी रात बाद विच गुजरी मेरी वो तेरे नालों वधिया इस करके गुजरी कि मैं रब्बी इबादत विच जुड़ गया। ते तू सौ के गुजारी नहीं वो सारी रात। ते वो कहण लगा भी ये गल ते मन लई, पर मैनूं दूजी गल ते दस मेरा घर शराब किवें है, किवें धर्मशाला। फकीर कहण लगा भी मेरा काम है इधर उधर जाना प्रचार के वास्ते, कि मैं कुछ साल पहला तेरे घर का दरवाजा खड़काया सी, मैनूं एक बुजुर्ग मिलिया सी। वो कौन सी? कहण लगा मेरा दादा सी। कहण लगा कित्थे गया? कहण लगा वो चढ़ाई कर गया। कहण लगे विचकार जब फिर एक बार मैं आया सी, उस वक्त मैनूं अध खड़का मनुख मिलिया सी। वो किधर गया? कहण लगा वो मेरा पिता सी ते वो भी दुनिया संसार छड्ड गया ते हुण मैं रह रहा। फकीर हस के कहण लगा भी भलिया, जिस घर दे विच कोई सचेत ना होवे, आउंदा होवे, चला जांदा होवे ते वो सराई होया करदी है। जिवें मुसाफिर सराय दे विच आउंदा, रात कटदा चले जांदा ते परत के ओहदे नाल मेल नहीं पाउंदा। सतगुरु महाराज की यही गल समझाउणा करते हैं। सतगुरु महाराज कहते हैं एक रैन के कौन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए। ये एक रात कटन के वास्ते मानो मुसाफिर की तरह तुम आया संसार दे विच, पर बहुत जुग आस बंधाए, बहुती आस ला करके तू संसार दे विच रह गया। सतगुरु महाराज बार बार समझाउणा करते हैं कि जेड़ा भी जीव संसार दे विच आया वो भी जाना ही जाना है। ये उस मार्ग का कुदरती निज़म है, अटल निज़म है। सतगुरु पावन बाणी के विच भी इस गल समझाते हैं, मरण लिखाए मंडप में आए। फिर पहला क्या मरण लिखिया गया, फिर तू मंडल भाग संसार के विच आया। और सतगुरु महाराज ने एक बार नहीं 3 बार इको जिहे शब्द वरत के सानू समझाउणा कीता। अनंत जतन कर काल संताए, मरण रखाए मंडल में आए तलाशनी रात के विच। फिर सतगुरु महाराज 876 पावन पन्ने दे विच फिर समझाउणा करदे ने। सतगुरु महाराज कहते हैं मरण रखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई। एक जगह हम देखा स्वामी भाई बदलती आई, ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसी बाप ना भाई। प्रणवत नाम जेतू देवे अंते में सिखाई। ये दूजी बात फिर वो जे लफ्ज वर्त के समझाते ने कि तू सचेत नहीं है। तीसरी बार फिर 1002 पावन पन्ने के उत्ते सतगुरु महाराज कहते हैं मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रहिए चलना प्रथाए। सच्चा अमरापुर सो सच मिले बढ़ाई है। सदीवी अमर जिहड़ा है वो मालिक है। बाकी दुनिया के विच जो भी आउंदा है सतगुरु महाराज कहते हैं उन्हें एक दिन संसार के विचों जाना है। सतगुरु महाराज कहते हैं जो आया सो जग से सब कोई आई बारी, जिवें दी बारी आउंदी है तिवें इस संसार के विचों
ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਤੁਸਾ ਦਾਨ, ਨਸਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਟ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ, ਨੇ ਉਠਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚਿਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੇ ਜਾਹੇ, ਸਰਬੈ ਸਰਬੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗਏ ਬਿਹਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਲ ਯੁਗ में कीर्तन करदाता गुरमुख जपिए लायकिया नामे महावाका अनुसार हरि जस कीर्तन कथा विचारा हुई सतगुरु जीओ। इतने समय दौरान आप जी दे बच्चों पासों गुरबाणी दे जाप करदियां सेवा करदियां बेअंत प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गईयां होणगियां आप जी अपने बच्चे जान के मुआफ करना सतगुरु जीओ। बड़े सुने गुरबाणी का भाव उस विछड़ी हुई रूह को अपने चरणों दे विच निवास बख्शिश करना पिछे सेवक परिवार साथ संबंधियां नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करना सतगुरु जीओ। आप जी दे दरबार साहिब दे इमारतां दे लई सेवक परिवार ਵੱਲੋਂ उस विछड़ी हुई रूह की याद के अंदर 2100 रुपया माया भेटा हासिल हुई है सतगुरु जीओ। जिन्ना खजाने विच माया आई है सो खजाने भरपूर करने चढ़ती कला बख्शिश करने कीते हुए सेवा का भाव उस विछड़े हुए रूह नूं अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करना समूह परिवार के सीस दे मिहर दा हथ रखना दरों करो नाम दान गुरसिखे सदका भरोसा बख्शिश करना सतगुरु जीओ। ऐस वक्त जो भाई भाई आप जी के दरबार दिल फुल भेटावां लेकर हाजिर हुई हैं सबना दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां सतगुरु जीओ। करो कृपा सेवक परिवार वालों कड़ा प्रसाद हाजिर है दा प्रवान होवे परिवार
के लंगर तैयार होए हन। आप जी कृपा करनी सतगुरु जीओ। जिन्हां खजानियां विच माया लगी है, सो खजाने भरपूर करने, चढ़ती कला बख्शिश करनी सतगुरु जीओ। पावन पवित्र इलाही हुक्म दी दात बख्श के संगतां नूं निहाल करो। हुक्म दे चलण दी समर्था बख्शो। सही गुरमुख प्यारे मेलणे, जिन्ना मिलिया तेरा नाम जिते आवे। धन गुरु नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आत्म विनय सकल वसता कै, जागा सतगुर पूरा। जाको हर रंग लगो इस युग में, सो रंयत है सूरा। आत्म जिन्हें सकल वसता कै, जागा सतगुर पूरा। ठाकुर गाइए आतम रंग, सरणे पावन नाम दयावन। सहज समावन संग रहा। जग के चरण बसै निरही अरै, सांग पुनिता देहि। जग के पूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एहि। जग के चरण बसै निरही अरै, सांग पुनिता देहि। जग के पूर देहो कृपा निध, नानक कै सुख एहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹਫ਼ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਪਰ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ BDM ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो सब तो पहला मैं बेनती करांगा डॉक्टर बलदेव सिंह, सीनियर मैडिकल ऑफिसर, प्रेसिडेंट पंजाब PCMS वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब, डॉक्टर बलदेव। आज असी बहुत ही दुखी साढ़े अंकल जी सरदार अनंद सिंह होर जी की याद में श्रद्धा सुमन भेंट करने का तरफ रहे हैं। उन्होंने जोड़ा नाम
आनंद सिंह वो अपने जींदे जी भी और अपने जान तो बाद भी पूरा साथ खड़ा कर रहे हैं, जिहदा कि बिल्कुल सबूत साढ़े डॉक्टर साहब, उन्होंने ब्रदर और बाकी परिवार के मैंबर पुत्रियां जिहड़े कि MD कर रहे हैं, अपना नाम नहीं पूरा साथ कर किया अनंत, जिहदा कोई अंत नहीं। शरीर बेशक चला गया है पर जिहड़ा उन्होंने कर्म सी ड्यूटी सी वो अनंत है। डॉक्टर साहब उन्होंने शख्सियत ऐसी है, उन्होंने देख के भली भांति आप अंगन की शख्सियत का अंदाजा ला सकते हैं कि कोई भी मुसीबत है डॉक्टर साहब पहला पहुँचते हैं, घर के बाद पहुँचते। सो इन्नी आनंद जो उन्होंने कर्म ड्यूटी है डॉक्टर साहब से झलकता है हर वेले तत्पर, चाहे कोई जानता चाहे नहीं जानता, मदद के तत्पर अनंत एनर्जी है डॉक्टर साहब की हमेशा। इन्नी एम्पैथी आप अज तक किसी इन्ने सीनियर बंदे और सैल्फलैस, बिल्कुल सैल्फलैस, कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं है। और उतों उन्होंने जी शख्सियत है उन्होंने नाम सार्थक हो जाता है आनंद। शरीर बेशक अंत हो गया है पर उन्होंने जो कर्म ड्यूटी है उसका कोई अंत नहीं है। तीसरी पीढ़ी तक वो बिल्कुल आनंद है, हमेशा अमर है। और मैं पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन वालों उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हाँ। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। डॉक्टर SP सिंह जी सट फाउंडेशन संस्था के प्रेसिडेंट भी ने, एजुकेशनल ट्रस्ट ने, और ये तकरीबन 150 ਤੋਂ ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने बच्चों दी निजी समस्यावां शायद उन्होंने माता पिता को भी पता होनियां, लेकिन डॉक्टर SP सिंह उन्होंने पता है। उन्होंने बच्चों को सिर्फ असं फीसा ही नहीं दी संस्था, कपड़े या वर्दियां या किताबां या कोई होर चीज़ नहीं, उस तो इलावा उन्होंने टाइम की जी काउंसलिंग जी है वो डॉक्टर SP सिंह जी इदा मुहैया कराते जिदा कि उन्होंने अपने बच्चे हो। और उन्होंने साथ मैडम सुखविंदर कौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर ने, उन्होंने बराबर का साथ आ बच्चों को अपने को ला के कोचिंग IAS PCS और बैंकिंग की अमृतसर के फ्री करवाने की वो पूरी अपने को कोशिश करते हैं। यहो दिल परमात्मा सबको बख्शे, यहो भावना परमात्मा सबको देवे, ताकि समाज जो सुखी हो सकता है। और मैं बेनती कराँगा सट फाउंडेशन के साढ़े जनरल सैकटरी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और संस्था वालों समूह संस्था वालों श्रद्धांजलि के कुछ शब्द कहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर SP सिंह जी ने सट फाउंडेशन संस्था में 5000 रुपया है मिस्टर डॉक्टर SP सिंह उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया परिवार ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। मास्टर सतनाम सिंह जी उन्होंने अंत होता हाजिर होए। मेरा इस परिवार के नाल पिछले 48 सालों ਤੋਂ प्यार है। जो ਅਸੀਂ पढ़ते सी ਤੇ ਜਦੋਂ मैं कभी घर जाना तो बस देखना भी अंकल जी होनी ना ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਣਾਈ कर रहे यानी मकान बना रहे। जे मैं थोड़ी देर बाद जाना तो देखना तो रद्दा भी अभी खड़ा है तो दरवाजे भी बना रहे। जे मैं थोड़ी देर बाद ही जाना तो दरवाजे ला भी आते हैं। तो मैं वो कहना अंकल जी कि तुम सारा काम कोई आप ही करते हो। तो वो मतलब बड़े घोड़े पढ़ाए ले जे वो कहते चलो यार इस बहाने किसी न्याणे की पैंटी आ जाओ तो जितने मैं मेहनत करके उसको मालूम है मेरे बच्चों की जिंदगी है वो बढ़िया हो। तो बड़ा सानू लगना भी कितने हार्ड वर्क जी साड़ी ये पीढ़ी सी ना साढ़े जो फादर से ये पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया और वो उन्होंने संघर्ष देख के मैं देखा कि जेडी उन्होंने अपनी किरत के बूटे लाए डॉक्टर SP जी वर्गे उन्होंने छोटे ब्रदर गुरिंदर जी जेडे उन्होंने बूटे अपने किरत की मेहनत नाल लाए सी अज उन्होंने फल दिता है समाज। और ये जी अज आप गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में रह के आप जो भी दुख होता है सुख होता है आसरा लेने एक मैं भी थोड़ा इतिहास की गल करनी चाहवागा कि जो साडा समाज है इतना कितना पहुंचे इतने। देखो एक बड़ी संघर्ष की बड़े समय की गल है कि जो युगा युगा तो संघर्ष जो चलता रहा है जिन्होंने को कुछ है तो जिन्होंने को कुछ नहीं है। जे आप गुरु तो भी गल शुरू करिए तो उन्होंने भी कहा कि आप सबको इदा का समाज होना चाहिए हर एक बहुजन हिदायत बहुजन सुखाए हुए। उस तो बाद साढ़े नाम के सतगुरु कबीर जी साढ़े जिन्हें महाराज आए उन्होंने कहा सरबत का भला
जो साढ़े 10वें पातशाह आए उन्होंने कहा कि गरीब सिखों को तो पातशाह। तो जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उन्होंने सोचा कि ये चीज जी है जो साढ़े गुरुओं का सपना सी वो कितना हो सकती है। तो उन्होंने संविधान के चीज़ां पाई तो उसका पहला फल साड़ी जी साढ़े तो सीनियर पीढ़ी सी जिदा साढ़े अंकल जी सी इन्होंने पहली जी मैं बादशाह जी समझता कि जो पिंडा विचों उठ के मास्टर बने और डॉक्टर साहब की अपनी फैमिली के विचों इन्हों के चाचे ताए जी सब इन्हों के चाचे ताए ने जिन्होंने विचों 2-3 इन्हों के जोड़े अंकल ने IAS वगैरह सैकटरी जनरल सैकटरी या पार्लीमेंट्री सैकटरी का रिटायर है। ये बिकॉज ऑफ द कि साडे जिहड़े महापुरुषों ने सपना लिया सी ते ओदी बदौलत ये साडी पहली पीढ़ी सी इन्होंने संघर्ष किया इन्होंने अपनी मेहनत के नाम जिस तरह मैं दसिया डॉक्टर साहब उन्होंने परवरिश की ते बाकी डॉक्टर साहब उन्होंने बारे या इन्हों के फैमिली बारे तुसीं पहले ही डॉक्टर दे हुण दस चुके हैं भी किसी ने इन्ना कुछ करना हर बंदा कर नहीं सकता। साडे कोल इन्ना समा भी नहीं है। डॉक्टर साहब को किसी का फोन आ जाए कि साडे मरीज में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब ने अपने काम छड्ड के उत्थे जाना। तो देखो ये अंकल जी की मैं कहना किरत है चीज़ है ਜਿਹੜੇ उन्होंने संस्कारियों को दिते जिस करके समाज के विच जिहड़ा वो चीज़ जिहड़ी है बन रही है। जिस तरह रंजीत ने दस्सिया कि साडी भी सच फाउंडेशन नाम की संस्था है असी जिहड़े जरूरतमंद बच्चे ने उन्हों की मदद करते हैं वो मदद आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन करते हैं। सिर्फ वो एक शर्त है कि बच्चा इंटेलिजेंट हो और जरूरतमंद हो। साडियां कुछ लिमिटेशन ने असी किसी सरकार को कोई पैसा नहीं लेंदे साडे जिहड़े डॉक्टर ने वकील ने इंजीनियर ने असी अपनी जिहड़ी हक की कमाई हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्री धर्मेंद्र कुमार दादरा जी फॉर्मर जनरल सैकटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन समता सैनिक दल पंजाब वालों लाहौरी राम बाली जी वालों शोक मता आया। इस तो अलावा सरदार अमनप्रीत सिंह मन्ना डायरैक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने जगदीप सिंह भुल्लर जी प्रेस रिपोर्टर अजीत उन्होंने अपना शोक मता भेजा। बाल विकास परिषद हुशियारपुर रजिस्टर्ड संस्था वालों शोक मता आया प्रधान सुभाष मेहता जी का और कुलदीप राय गुप्ता जी साढ़े जो अंकल जी उन्होंने अपन भावनावां इस मते रही रखिया ने उन्होंने धन्यवाद। हुण मैं बेनती कराँगा बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के हुशियारपुर तो मुकाबले उम्मीदवार वरिंदर सिंह प्रहार जो कि इलाके की बहुत ही मशहूर समाज सेवी व्यक्तित्व है और जिन्हें डॉक्टर SP सिंह उन्होंने मन समाज के प्रति देख के जागरूक देख के भेजता है इन्हें सरदार वरिंदर सिंह प्रहार साहब ने तहैया किया कि जोड़े बेघरे लोग है उन्होंने मैं अपनी जेब के विचों मकान बना के देने हैं और इन्होंने तकरीबन 60 तो उपर गरीब झोपड़पट्टी रहने वाले लोग जोड़े सड़कों पर सौंदे सन उन्होंने अपनी जेब तो 2-3 लाख रुपये लगा के 60 मकान इन्होंने इस इलाके बना के दिते हैं और इन्हों टीचा है कि मैं 100 मकान इस हल्के में बनाने हैं और इस तो अलावा किताबा लिखियाँ और अज इन्होंने मौका मिले कि समाज की राजनीतिक तौर पर सेवा करनी है तो अज इस दुख की घड़ी के शमूलीयत करने वास्ते साढ़े आए ने वो भी चंद शब्द आप जी ने रूप रखणगे। सरदार वरिंदर सिंह प्रहार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और आज असी सरदार नाथ सिंह जी के परिवार नाल दुख साझा कर आए हाँ। बड़ी दुख की घड़ी है परिवार लिए जो परिवार का मुखी तुर जाता तो मुसीबत जो पैंती है वो तो परिवार में पता होंगे पर मैनू आ देख के सकून मिलया कि असीं शहर के कितनियां संस्थावां कितने चंगे चंगे
ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵਸੀਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਣ ਆਏ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਇਸ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ DGN ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ
फिर एक नवा दरवाजा खुलता है, उन्होंने एक नवा जीवन जिहड़ा मिलता है जीवात्मा नूं। ये सब तो पहला भगवान कृष्ण जी ने ये सानू फलसफा दिता है, और फिर जब गुरु नानक देव जी आए उन्होंने सानू मौत का फलसफा साडे सामने रखा है। उन्होंने जिहड़ा साडा कोई बहुत ही सत्कारयोग नेड़े जदों सਦੀव विछोड़ा दे दिंदा है, तब गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि रुना बाबा आखिए जे रोवे लायक पे है, जो साडा विछड़ गया जे ਉਹਦੇ प्रति साडे प्रेम विच ਉਹਦੇ प्रेम विच दो अथरू निकलते हैं ते वो जायज है, वो रोना जायज है। गुरु नानक देव जी कहते पर बाजेवे कारण रोइए बाबा रोवन सगल भी कर, पर असीं बदेलियां के कारण रोने। पर गुरु नानक देव जी कहते हैं जो प्रेम के अथरू निकलते हैं तो वो जायज नहीं। फिर एक सवाल गुरु अर्जन देव जी साढ़े सामने रखते हैं, वो कहते हैं पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रख जाया, माटी माटी हुई एक, रोगन हारे की कवन की। वो साढ़े सामने सवाल रखते हैं कि भाई खोजो भाई ब्रह्म ज्ञानी, ऐ सियाने बंदे इस गल की खोज करो। हवा हवा विच रल गई, मिट्टी मिट्टी विच रल गई, पानी पानी विच रल गया, तो असीं कहते प्राणी चला गया, पर चला कौन गया? ये जरा तुहाडे सामने सतगुरु पातशाह साढ़े सामने सवाल रखते हैं कि जरा सोचो इथों चला कौन गया? जिन्होंने असीं शरीर कहने वो तो इस तरह पंजा तत्तां विच मिल गए। तो मैं पढ़ रहा सी होर कि तिब्बत का एक कबीला है, उन्होंने एक मौत के प्रति प्रयोग किया है और लगातार प्रयोग उन्होंने चलता है। जो को प्राणी चढ़ाई करने के नेड़े होंदा है तो उन्होंने लिटा देंगे ने, चिट्टी चादर उहदे थल्ले भी बिछाते हैं तो वो उपर भी चिट्टी चादर जी बिछाते ते मूँह का नंगा रखते हैं। वो सामने एक लाइट दीवा जगता सामने रखते हैं। फिर उन्होंने कहते हैं देख तू अपना जीवन सारा बतीत कर दिता, जिमें भी किया ठीक है, पर हुण तू सोच कि तू शरीर नहीं सी छड्डण जा रहा, और जिहड़ा तू रिश्तेदार का दोस्त मित्र सन वो भी आए कोई नहीं है। ये जिहड़ी तेरी लाइट लगी पई है, ये जिहड़ी जोत है, बस ये जोत ही है। अपने आप को तू जोत समझना, बस एक जोत अपने आप को ज्योति में जोत रल जाए, जिमें गुरबाणी कहती हुई ज्योति में जोत रल जाए, बाकी सब कुछ छड़ दे ते तू अपने आप को एक जोत समझ ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना जरा ध्यान रख ते होर किसी पासे तू अपना ध्यान ना रख। इस तरह वो एक तिब्बत का एक कबीला जिहड़ा है उन्होंने भागवत प्रयोग कहते हैं। तो साध संगत जी ये मौत तो सबनों होनी है, पर जिहड़ा उस प्रभु परमात्मा का नाम लेंदा है तो वह मरना जिहड़ा सैला हो जाता है। और साडे मास्टर जी आनंद सिंह जी जिहड़े मैं क्योंकि मिलता ही रहता सी, कई बार साडे मुकेरियां भी आते सन तो बड़े हसमुख सुभाव के होंदे सन। हर गल दे नाल उन्होंने मुस्कुरा के गल करनी, बड़े खुश तबीयत रहते सन। तो मैं आखिर में सतगुरु पातशाह के ये अरदास करदा कि उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शे कि पिछे भाणा मनन का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। रिटायर्ड मैनेजर एसपी डरवाल जी उन्होंने संवेदनावां परिवार के नाल है, और डॉक्टर तरलोक जी, मिसेज योगेश फॉर्मर प्रिंसीपल गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर, उन्होंने को शुभ संदेश है। हीलिंग डॉक्टर हॉस्पिटल तो डॉक्टर DB सिंह और उन्होंने शुभ परिवार वालों शुभ संदेश है। हूँ मैं बेनती कराँगा श्री कुलदीप राय गुप्ता जी और इसका अपना 1 मिनट की अपनी
ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਕਦਮ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। मैं किरी उंगल पढ़ के चलता सी, मैनू कौन इस जिंदगी के बारे समझाता सी, वो कौन सी जिहड़ा सदा ही मेरी उन्नति की चिंता करता सी। जवाब मिलता है बाप पिता। पिता का या मां का मुकाबला किया नहीं जा सकता। पर जे विचार करिए तो पिता एक इहो जी शख्सियत है जिसका रंग रूप उहदा काम उहदे बच्चों से चलता है। अगर आज बच्चे अपने पैरों से खड़े हैं और अपनी शख्सियत के नाल समाज को एक नवी सेध दे रहे हैं, उन्होंने पिछे वो बाप जड़ा ना दिन देखा ना रात देखी, वो इसे सोच से रहा कि किस तरीके के नाल ये मेरे बच्चे समाज दे विच नाम ना कटन। मां का एक और रोल है दुनिया दे विच। जदों भी असीं दुखी होते हैं, दर्द होती है, आए मां। लेकिन जदों असीं विचार करते हैं कि साड़ी जिंदगी नूं खुशहाल बनाने वाला, साड़ी जिंदगी नूं एक नवी सेध देने वाला बाप ना सी अनंत सिंह। अनंत का कहना क्या होता है? कई कहते ना भी रखे जाते हैं, मैं कहना नहीं, ना का असर उस व्यक्ति की जिंदगी में और अनंत ने अपनी जिंदगी अनंत मांगी बताई। वो एक बहुत बढ़िया अध्यापक सन, अपने बच्चों की एजुकेशन के उत्ते वो पूरा ध्यान देते सन। और दो तरह के अध्यापक कई तरह होंगे हैं। कुछ अध्यापक यहो होंगे हैं जिहड़े सख्ती विश्वास करते हैं, कुछ अध्यापक यहो होंगे हैं जिहड़े प्यार से विश्वास करते हैं। और आनंद जी अपने नाम के अनुसार ही प्यार से विश्वास करते सन। उन्होंने विद्यार्थी उन्होंने वेख के छुपते नहीं सन, बल्कि उन्होंने को आके प्रणाम करके सलाह लेंदे सी, अपना दुख दसते थे। उनकी कोशिश होती सी मैं उन्होंने दुख दूर कर दिया। इहो जी शख्सियत समाज के जो होती है, समाज चढ़ती कला में जाता है। पर यह नहीं कि उन्होंने जान के बाद समाज को फर्क पेगा, क्योंकि वो जान तो पहला एक माली नागर बहुत सारा सुनहरा जहा बगीचा तैयार करके जाते हैं, जिन्होंने बेशुमार सोने सोने फुल के समाज में नवी सेध देते। और ये गुण जिहड़े सन उन्होंने जिंदगी उन्होंने एक महान शख्सियत के रूप में साढ़े सामने लिया। अज मैं उन्होंने परिवार के नाल जिथों उन्होंने नाल दुख में साझ करना, उत्थे ही उन्होंने बधाई देना कि तुसी अपने पिता के बारे जब याद करोगे तो सीना गर्व नाल उच्चा हो जाएगा और तुसी कह सकते हो ये सारी देन साढ़े पिता जी ने, और ये सारे नहीं कह सकते। इसलिए तुसी इस गलों मुबारकबाद के हकदार हो कि तुहाडे पिता जी ने तुहाडे लिए और समाज लिए बहुत सारिया नवीं नीतां पाईआं। सन 50 दे विच
अपने बच्चों बारे सोचना और अपने बच्चों के पांच बच्चों के चंगी शख्सियत याद करनी ये कोई आसान काम नहीं है। आज उस शख्सियत को प्रणाम करते हुए उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करांगा, हे प्रभु जिथे इन्होंने बच्चों को शक्ति देनी है कि वो अपने पिता के दसे रस्ते से चलन, उसे उस रूह को अपने चरणों में लैके, क्योंकि जीवन और मरण जोड़ा है जितना पहले स्टार्टिंग कह के गए, जीवन और मरण आवश्यक है, लेकिन जीवन के मरण के मर गया कौन मर गया? असं कहने देह के नाम ही व्यक्तित्व है। देह है तो बंदा है, जे देह नहीं तो खत्म हो गया, फिर की रह जाना असली आत्मा बना। आत्मा तो चली गई, वो सानू मिली नहीं, लेकिन सचमुच चल जाती है, वो खुशबू उन्होंने सारे रहती है जिन्होंने नाल उस आत्मा का कितने ना कितने संबंध रहा है, और वो सारे ही उस आत्मा को याद करके प्रणाम करते हैं। जिथे सारे प्रणाम करते हैं, मैं भी उन्होंने प्रणाम करता हूँ और इस परिवार के नाल डूंगी सहानुभूति पेश करता। बाल विकास परिषद के मैंबर हैं, 2 मिनटों में बाल विकास परिषद की गल करते हैं। 42 साल पहला जो बाल बड़ा बनाया गया सी, उदों इस संस्था का जन्म होया सी। ये संस्था बच्चों की वर्दियां देती है, ये संस्था बच्चों ने फादरलैस बच्चे हो उन्होंने 400 रुपया पर मंथ राशन देती है। अज के समय में भी असी 95,000 रुपया महीने का राशन दे रहे हैं बच्चों। 400 रुपया एक बच्चे का राशन होता है और एक परिवार को 2 बच्चे राशन देते हैं। और इस कोरोना काल में भी असी रुके नहीं, लगातार काम होता है, बच्चों की सहायता करते रहे हैं और टेस्ट भी कराने हैं, उधर भी करते हैं। और बच्चों को हर तरह का हूँ भी असी आए अगले महीने से सर्दियों की वर्दी दे रहे हैं, बूट जुराबा जर्सी लगभग 800 के करीब बच्चों को। ये सारा काम जोड़ा है उस परमपिता परमात्मा की कृपा नाल हो रहा है और असी उस मालिक के शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साढ़े समय कोई चंगा काम लाया और असी बच्चों की सेवा करने समर्थ हुए। एक बार फिर इस परिवार के नाल डूंगी हमदर्दी करते हुए अनंत जी के चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए उन्होंने सुख मंगता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। सूबेना प्रगतियां ने अवतार जी ने बोर्डी कस्टड डिपार्टमेंट को परमिंदर सिंह शाही जी एडवोकेट लाल के मैन जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन परिवार को जो रस्म है, रस्म पगड़ी वो निभाई जाएगी। डॉक्टर एस पी सिंह जी बड़े जो समाज के रिवाज है कि बड़े बेटे करना, उन्होंने बेनती है कि अगे आ जाए और सारिया संगतां को बेनती है कि लंगर उनका लंगर तैयार है, सारे ने लंगर छके जाना। माता सुखीर कौर वालों जिन्हें भी इतने सज्जन तुर के आए हैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।